Hello everyone, this is Rita and I'm working as a PGT in one of the government schools in Haryana. I have been in this job since last 7 years. In my initial years, I many times felt that if I would have been provided with some advanced resources like digital board or smart class or projector or language lab, I could have given my best. But today, I'm no more regretful of being a part of the government school. Today, I can proudly say that I teach in a government school because the scenario has been totally changed. Gone are the days when the teachers used to teach through boards, blackboards, and books, and chalk and duster and all. Yes, I'm talking about today's government schools where the government has provided with so marvelous facilities, marvelous resources with the help of which we can create wonders. And on behalf of all the teacher community, I'm really thankful to the state government and to the education department for providing us with so wonderful resources. So right now I'm here to present a demonstrative video on the usage of the digital board. As it was a need of the hour, each and every teacher must be equipped with the usage of these digital boards, these resources, right? So it was felt that some video should be there demonstrating the application of the board. So here I am. Let's begin with the hardware of the board. So we are provided here with a digital board along with a cabinet which comprises with a visualizer that works for scanner and a wireless mouse, a keyboard, and this is multimedia controller and a UPS. So let's learn how to start it. So here we have some buttons. The first step is power on UPS. Then the second step is the side button on the cabinet, the red button. Press this button. Third step is ये जो आपको मल्टीमीडिया कंट्रोलर है इसके ऊपर बहुत सारे बटन्स नजर आते हैं. इनमें से द फर्स्ट बटन इज ऑफ पावर बटन. पावर बटन को आपने लॉन्ग प्रेस करना है. जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे some lights will be flashed and the beeps will come. The last step is power on the button on the board itself. So now we have the home screen. आपको जैसा दिख रहा है कि होम स्क्रीन पर अभी 3 आइकन्स अवेलेबल हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ ये 3 ही आइकन्स हैं. We have some more applications in our board. So as you click this small icon at the bottom corner of the board, you will get all the applications. सबसे पहले हम बात करते हैं ब्राउजर की. ब्राउजर ओपन करने के लिए आपको यू हैव टू बी कनेक्टेड विद योर मोबाइल डाटा और इंटरनेट कनेक्शन. तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए द सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड जो कि आप अपने फ़ोन को जिस तरह से अपने मोबाइल डाटा को शेयर करते हैं. अगर आपके स्कूल में वाईफाई अवेलेबल है इट्स ओके. अगर नहीं है तो जस्ट क्लोज इट एंड दिस साइन, दिस आइकन, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ऑल द अवेलेबल नेटवर्क्स विल बी रिफ्लेक्टेड हियर. आप अपने फ़ोन के फ़ोन पर हॉटस्पॉट ऑन करेंगे. सो एज यू कैन सी मेरा फ़ोन यहाँ से कनेक्टेड है ऑलरेडी. नाउ I'll go back, open the browser and you will get the browser here. So come let's learn how to make your teaching useful with the help of browser. While taking class, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ टर्म्स हमारे सामने ऐसी आती हैं जिनके बारे में बच्चों ने सिर्फ सुना होता है, उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो चीज़ देखने में कैसी है. So we can show the images of those things और अपने कंटेंट को हम इंटरेस्टिंगली और क्लियरली बच्चों को समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं. Other than that,
हम YouTube का यूज़ करते हुए कुछ वीडियोस बच्चों को दिखा सकते हैं जो कि फुल ऑफ मॉरल हो। कुछ स्टोरीज़ वहाँ पर अवेलेबल होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं, कुछ पोएम्स कैसे रिसाइट की जाती है वो बच्चों को दिखा सकते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सभी बच्चों के पास बुक्स अवेलेबल नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू, हम ब्राउज़र पर जाकर अपना जो बुक हमें चाहिए वो हम डाउनलोड कर सकते हैं, PDF उसकी, चाहे हम पूरी बुक का PDF ले लें, चाहे उस पर्टिकुलर चैप्टर का PDF हम वहाँ से डाउनलोड करके वी कैन टीच डायरेक्टली थ्रू द स्मार्ट क्लास। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हमने घर पे बैठ के अपना कोई कंटेंट प्रिपेयर किया। फॉर एग्जांपल हमने अपना कोई वीडियो शूट किया घर पे बैठ के, या हमने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, टाइप किए हैं घर पे बैठ के, क्योंकि हमें स्कूल में इतना टाइम नहीं होता है, तो वी कैन डायरेक्टली सेंड टू आवर मेल, और आप अपने स्मार्ट क्लास में आके अपने बोर्ड से इसको आप डाउनलोड करें, और सिस्टम में डाउनलोड करने के बाद यू कैन शो डायरेक्टली टू द स्टूडेंट एंड टेक योर लेसन फ्रॉम देयर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीराकास्ट, जिसका आइकन कुछ इस तरह से है। सो आवर नेक्स्ट आइकन इज मीराकास्ट। मीराकास्ट, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, आपके फ़ोन्स में भी ये फीचर अवेलेबल है। ये काम क्या करता है, आपके फ़ोन की स्क्रीन को शेयर करता है। स्क्रीन शेयर करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो इसे ओपन करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू स्विच इट ऑन। ऑन करने के बाद ये आपको डिवाइस नेम, पीयर डिवाइसेस, ये सब ऑप्शंस नज़र आएंगे। सो इसके लिए आपको क्या ज़रूरी है, आप अपने फ़ोन में प्ले स्टोर से मीराकास्ट ऐप डाउनलोड करें। आफ्टर गेटिंग इंस्टॉल्ड, एज यू क्लिक ऑन द ऐप, आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, वायरलेस डिस्प्ले एंड मोर ऐप्स। आपको वायरलेस डिस्प्ले पर क्लिक करना है एंड यू विल गेट द नियर बाय डिवाइसेस नेम्स। इनमें से आपको जो डिवाइस नेम आपके बोर्ड में रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपको उससे कनेक्ट करना है एंड योर फ़ोन विल बी पेयर्ड। Now whatever content you want to share from your phone on the board screen, you can do it. The benefit of this software is कि कई बार आपके फ़ोन में कुछ ऐसा relevant content होता है जो आपके सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, तो you can easily show your desired content to the students. या कभी आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है and you want to show something online, तो you can use this software. नेक्स्ट फीचर इज WPS ऑफिस। तो जैसा कि आपको पता है कि जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है वो ऑफिस में किया जाता है। सो व्हेन वी क्लिक इट, दिस स्क्रीन विल बी ऑन दिस स्क्रीन विल अपीयर हियर, और जब आप इस पर इन एरोज के पीछे जो प्लस का साइन है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यू विल गेट दिस स्क्रीन। So this is new memo, जो कि नोटपैड का काम करेगा। स्प्रेडशीट इज़ फॉर एक्सेल, जितना भी एक्सेल का काम है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। वैसे ये हायर क्लासेस के लिए यूज़फुल है। न्यू प्रेजेंटेशन इज़ फॉर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो कि हमारे लिए एक टीचिंग एड का काम करती है। आप यहाँ से अपनी PPTs दिखा सकते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट इज़ वर्ड फाइल, वर्ड पे आपको कुछ क्रिएट करना है तो आप इसे यूज़ करें। सो राइट नाउ, जैसे ही आपने स्क्रीन को ओपन किया तो द स्क्रीन यू विल गेट हियर इज दैट ऑफ रिसेंटली ओपन्ड फाइल्स। जितनी भी आपने फाइल्स यहाँ पर खोली है, ऑलरेडी खोली हुई हैं, चाहे वो डाउनलोड की हुई हो, चाहे वो कॉपी की हुई हो, तो वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट PPT। तो जैसे ही आप PPT पर क्लिक करेंगे, योर प्रेजेंटेशन विल बी ओपन्ड। वाइल टीचिंग हम मोस्टली साथ साथ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो देयर आर 2 ways टू प्ले। कीबोर्ड पर F5 प्रेस करें एंड योर स्लाइड शो विल बी स्टार्टेड। अनदर वे, क्लिक द थर्ड ऑप्शन, प्ले। स्लाइड शो के लिए वी हैव 2 ऑप्शंस, मैनुअल एंड ऑटो प्ले। मैनुअल में पहले करंट पेज, जिसमें बीच से किसी स्लाइड से स्टार्ट करना हो, एंड इफ़ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, क्लिक फर्स्ट पेज। एंड
autoplay is if you want to show only slides one by one without explaining. अगर आपको सिर्फ पिक्चर्स दिखानी है, इमेजेस दिखानी है, तो आप स्लाइड शो कर सकते हैं. बट इफ यू वांट टू डिस्क्राइब समथिंग साइमल्टेनियसली इट वोंट वर्क. तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू कैन क्लिक करंट पेज और फर्स्ट पेज, इनमें से जो आप चाहें. अदरवाइज दिस प्ले साइन विल वर्क. ओके, so you can define, you can describe your matter from here simultaneously, and आपको पेज स्लाइड करने के लिए you can use these arrows, move backward and move forward. अगर आपको वहां पर नहीं जाना बार बार, आप यहाँ खड़े खड़े अपना चेंज करना चाहते हैं पेज, तो you can use your own hand also like this, and this is for back. This was all about WPS Office. और मेनली हम बात कर रहे थे पीपीटी की. तो पीपीटी किस तरह से शो करना है, किस तरह से आपने बच्चों को दिखाना है अपना कंटेंट, वो आपको मैंने बता दिया है. अदर देन दैट यू कैन क्रिएट अ वर्ड फाइल जिसमें आप क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं, अपना खुद का कोई कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फीचर्स के साथ. तब तक के लिए गुड बाय.